Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. In previous lecture, we had completed the natural polymers and examples of various polymers used in drug delivery system. The topic of discussion in today's class will be the continuation of polymers used in drug delivery system, and we will be discussing about the synthetic polymers and biodegradable polymers. So let's start with the synthetic polymers. Synthetic polymers are based on acrylic or methacrylic acids, and they have found extensive applications in the drug delivery area to protect the drug or to release the drug in controlled manner. These are classified as cationic polymers, anionic polymers, or neutral or non-ionic polymers. Despite the different solubility and swellability across the GI tract, the drug release from these matrices occurs through a diffusion process. सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स बेस करते हैं एक्राइलिक और मेथेक्राइलिक एसिड्स के ऊपर, और इनकी एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस हैं ड्रग डिलीवरी एरियाज़ में, स्पेसिफ़िकली ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए और ड्रग की रिलीज़ कंट्रोल्ड मैनर के अंदर करवाने के लिए। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं: कैटायनिक पॉलीमर्स, एनायनिक पॉलीमर्स और न्यूट्रल पॉलीमर्स। इन सिंथेटिक पॉलीमर्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी और स्वेलेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और ड्रग रिलीज इन पॉलीमर्स से, इन पॉलीमर मैट्रिक्स से मोस्टली डिफ्यूजन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। So let's discuss the classification of these polymers in detail. Starting first with the cationic polymers. Cationic polymers are one of the most widely used polymers for protective coating applications, and they have dimethyl aminoethyl methacrylate as a functional group. As far as its purity is concerned, the polymer contain less than 3000 ppm of residual monomers, including butyl methacrylate, which is less than 1000 ppm, methyl methacrylate, which is less than 1000 ppm, and dimethyl aminoethyl methacrylate, which is also less than 1000 ppm. These polymers are used as pH-dependent drug delivery platforms in order to protect the sensitive drug, to mask the unpleasant taste and odor, and to protect the active ingredients from the moisture, and also to improve the drug stability. Udragrade E100 is, for instance, is supplied as a granule and is used in taste masking applications where a low pH solubility of less than 5 is desirable. Cationic polymers को हम वाइडली यूज़ करते हैं कोटिंग के अंदर, ड्रग की पार्टिकल कोटिंग में या टैबलेट कोटिंग में। इन कैटायनिक पॉलीमर्स में जो मेजर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो डाईमिथाइल अमाइनोइथाइल मिथाइक्राइलेट है। जहाँ तक इनकी प्योरिटी का सवाल है तो इन पॉलीमर्स के अंदर जो रेजिडुअल मोनोमर की तादाद होती है वो मोस्टली 3000 ppm तक होती है, और ये रेजिडुअल मोनोमर्स 3 तरह के होते हैं, और ये तीनों मोनोमर्स लेस देन 1000 ppm की कंसनट्रेशन के अंदर इस मिथाइक्राइलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक ब्यूटाइल मिथाइक्राइलेट है, मिथाइल मिथाइक्राइलेट है और डाईमिथाइल अमाइनोइथाइल मिथाइक्राइलेट है। ये तीनों पॉलीमर्स या मोनोमर्स लेस देन 1000 ppm की कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है कैटायनिक पॉलीमर्स में।
मोस्टली कैटायनिक पॉलीमर्स पीएच डिपेंडेंट ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ होते हैं, लाइक सेंसिटिव ड्रग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर को मास्क करने के लिए, और एक्टिव ड्रग्स को मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा ड्रग की अगर स्टोरेज स्टेबिलिटी को इन्हांस करना है तब भी हम कैटायनिक पॉलीमर्स को यूटिलाइज़ करते हैं। मेन एग्जांपल इसकी यूड्राग्रेड E100 है, जो कि ग्रैन्यूल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है और मोस्टली ये टेस्ट मास्किंग एप्लीकेशंस में यूटिलाइज होता है, जहाँ पर आपकी जो ड्रग सॉल्युबिलिटी है वो लो पीएच के ऊपर है, यानी लेस देन 5 pH के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिज़ायरेबल है। So next is the anionic polymers. Anionic polymers have methacrylic acid as a functional group, and they are generally used for drug delivery past the stomach into the duodenum, jejunum, ileum or colon. Since the pH of the fasted stomach is below pH 3 in nearly every healthy person and below pH 2 in most of the people, the stomach represents a harsh environment for many drugs. Since the methacrylic groups dissociate at higher pH of the small intestine and colon, anionic polymers such as Eudragrid 155 with dissolution at pH 5.5 and Eudragrid S100 with dissolution at pH greater than 7 are highly desirable. Aqueous dispersions of these polymers, that is Eudragrid L30 and D55, are generally available for direct use in indirect coating applications. Colycoat MAE30DP is another example of the polymer, which is a combination of methacrylic acid and ethyl acrylate in a proportion of 1:1 and is supplied as a 30% aqueous dispersion. This polymer is used as a film former in indirect coating of solid dosage forms. Anionic polymers में methacrylic acid as a functional group यूटिलाइज होता है, और ये जनरली ड्रग की डिलीवरी जो स्टमक से लेके ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तक और कोलोन तक होती है, उन डिलीवरी सिस्टम्स में इन एनायनिक पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि फास्टेड स्टमक में pH 3 हेल्दी पर्सनस के अंदर एग्जिस्ट करती है, pH 3 से बिलो pH हेल्दी पर्सन या इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करती है, और pH 2 मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। स्टमक इस लो pH की वजह से एक हार्श इन्वायरमेंट होती है बहुत सारी ड्रग्स के लिए, और ये डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स अराइज करती है। methacrylic acids या methacrylic polymers हायर pH पे डिसोसिएट होते हैं, मोस्टली pH 5 और अबव पे। तो स्मॉल इंटेस्टीन और कोलोन में एनायनिक पॉलीमर्स में एम्बेडेड ड्रग की डिलीवरी ज़्यादा आसान होती है, और इसी वजह से हम डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स डिफरेंट pH कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यूटिलाइज़ करते हैं ड्रग की डिलीवरी के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल यूड्राग्रिड L155, इसकी रेजोल्यूशन pH 5.5 के ऊपर है। तो वो ड्रग्स इनको एब्जॉर्ब इस पर्टिकुलर pH पे होना है या डिसोसिएट इस पर्टिकुलर pH पे करवाना है, उन ड्रग्स को हम यूड्राग्रिड L100 या 55 के साथ मैट्रिक्स में एम्बेड करते हैं या कोट करते हैं। सेम इज़ द केस विद यूड्राग्रिड S100, इसकी रेजोल्यूशन काइनेटिक्स एग्जिस्ट करती है pH 7 या अबव के ऊपर। तो वो ड्रग्स जिनकी डिलीवरी ज्यूजनम, इलियम या कोलोनिक एरियाज़ के अंदर है, उसमें हम यूड्राग्रिड S100 को प्रेफर करते हैं। एक्वस डिस्पर्जन इन पॉलीमर्स की इजीली अवेलेबल है, जो मोस्टली इंडायरेक्ट कोटिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कोलीकोट MAE30DP। ये कम्बिनेशन पॉलीमर है जिसमें दो मोनोमर्स कंबाइन होकर एक पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर मेथैक्राइलिक एसिड और इथाइल एक्राइलेट 1:1 रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, और ये 30% एक्वस डिस्पर्जन की फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। इस पॉलीमर को हम फिल्म कोटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं या फिर
डायरेक्ट कोटिंग में भी एज अ फिल्म फॉर्मिंग एजेंट यूटिलाइज करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में, मोस्टली टैबलेट्स की डायरेक्ट कोटिंग के लिए. The next class of synthetic polymers is neutral polymers or non-ionic polymers. Acrylate or methacrylate polymers with or without aminoethyl functionality are generally insoluble or have pH independent swelling property. These are neutral acrylic polymers which are used for sustained release applications where insolubility of the polymer drug carrier is very much desirable. Neutral polymers with added functionality are supplied as powders, for example Eudragid RSPO, or as granule, for example Eudragid RS100, and aqueous dispersions, for example Eudragid RS30D. Neutral polymers with no added functionality are supplied as aqueous dispersion. And the examples include Eudragid NE30D, NM30D, and NE40D. न्यूट्रल पॉलीमर्स एक्राइलेट और मिथाक्राइलेट पॉलीमर्स होते हैं. इसके अंदर अमाइनो इथाइल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं कुछ पॉलीमर्स में, और कुछ पॉलीमर्स के अंदर अमाइनो इथाइल फंक्शनल ग्रुप्स एब्सेंट होते हैं. जनरली ये पॉलीमर्स इनसॉल्युबल होते हैं और पीएच इंडिपेंडेंट स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं. न्यूट्रल एक्राइलिक पॉलीमर्स को हम सस्टेन रिलीज एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं उस वक्त जब इंसॉल्युबिलिटी पॉलीमेरिक ड्रग कैरियर की डिज़ायरेबल होती है. So the next is biodegradable polymers. The drug can be released from a dosage form as a result of polymer erosion. Erosion mostly occurs because of biodegradation or swelling, and this might happen within the bulk of the polymer, or it may be limited to the polymer surface at a time. Porous and non-porous platforms can provide bulk and surface erosion respectively. Polymers with ester and amide functional groups are susceptible to a hydrolytic degradation in a strong acidic and basic environment. When a polymer starts to erode from its surface, the drug embedded within the polymer matrix will be released at a rate depending on the erosion rate of the polymer. If erosion happens in bulk, a much faster release is expected as an enormous number of hydrolyzable sites are simultaneously cleaved up in water. Biodegradable polymers क्या हैं? मोस्टली जो ड्रग्स रिलीज़ होती हैं डोजेज फॉर्म से, वो पॉलीमर इरोजन की वजह से रिलीज़ होती हैं. पॉलीमर के अंदर जो इरोजन अकर हो रही है वो दो रीज़न्स की वजह से हो सकती है. ईदर बायोडिग्रेडेशन की वजह से या फिर स्वेलिंग ऑफ मैट्रिक्स की वजह से. बायोडिग्रेडेशन या स्वेलिंग विदिन द बल्क ऑफ पॉलीमर अकर होती है और ये लिमिट कर सकती है टू द पॉलीमर सरफेस ओनली. पोरस और नॉन पोरस प्लेटफॉर्म्स बल्क और सरफेस इरोजन प्रोवाइड करते हैं. पॉलीमर्स जिनके अंदर ईस्टर और अमाइड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, they are more susceptible to hydrolytic degradation in strong acid and basic environments depending upon their chemical characteristics. जब भी पॉलीमर इरोजन स्टार्ट करता है फ्रॉम इट्स सरफेस, जो ड्रग एम्बेडेड है इनसाइड दैट पॉलीमर वो पॉलीमर मैट्रिक्स से रिलीज़ होना स्टार्ट करती है, एंड द रिलीज़ ऑफ द ड्रग और द रेट ऑफ रिलीज़ ऑफ द ड्रग इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द इरोजन रेट ऑफ द पॉलीमर्स. यानी जितना ज़्यादा पॉलीमर कोटिंग सरफेस से इरोड होगा
उतनी ही ज़्यादा ड्रग रिलीज़ होगी। अगर पॉलीमर की इरोजन डिले होगी तो ड्रग की रिलीज़ भी डिले हो जाएगी। अगर इरोजन बल्क के अंदर होती है तो एक मच फास्टर रिलीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोलाइजेबल साइट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी और these hydrolyzable sites will actually cleave the polymer in water, thereby releasing the drug at a much faster rate. These biodegradable polymers can be classified as natural polymers or natural based polymers, or they may be synthetic polymers. Polysaccharides and protein-based polymers are obtained from the natural sources, whereas polyesters or copolyesters of lactic acid and glycolic acid, polycaprolactone, polyanhydrides, and polyethylene glycol are the most common synthetic biodegradable polymers, which are used for a variety of pharmaceutical applications. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ईदर दे मे बी नेचुरल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स या फिर ये सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स, ये जितने भी प्रोटीन बेस्ड पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल बेस्ड पॉलीमर्स हैं, जबकि पॉलीस्टर्स या कोपॉलीस्टर्स लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड के, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, पॉलीएनहाइड्राइड्स और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये तमाम पॉलीमर्स सिंथेटिक बेस्ड पॉलीमर्स हैं, ये सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। बायोडिग्रेडेशन के अलावा एक और मैकेनिज्म है जिससे ऑल्टरनेटिवली ड्रग रिलीज हो सकती है, दैट इज़ स्वेलिंग। ऑल्टरनेटिवली अ ड्रग मे बी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ matrix swelling. The matrix is made of non-biodegradable but erodible polymers which control the delivery due to its swelling. A polymer in its swollen form is mechanically weak and can be eroded at different rates depending on the swelling features of the matrix. A faster swelling hydrogel may undergo faster erosion and provide faster drug release compared with the low swelling hydrogel. The release kinetics from a swellable matrix is generally zero order. Alternatively, ड्रग की रिलीज बायोडिग्रेडेशन के अलावा मैट्रिक्स स्वेलिंग के थ्रू भी हो सकती है। एक्चुअली इस मैट्रिक्स स्वेलिंग के अंदर भी बायोडिग्रेडेशन जैसा ही मैकेनिज्म है, लेकिन इसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मैकेनिज्म कहते हैं या इरोडेबल पॉलीमर्स का मैकेनिज्म कहते हैं। इस मैट्रिक्स जो स्वेल होता है पॉलीमर मैट्रिक्स, वो एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का बना होता है जिसे हम इरोडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। ये ड्रग की डिलीवरी को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द स्वेलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। पॉलीमर जो मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है वो स्वेलिंग फॉर्म के अंदर मैकेनिकली वीक है और इरोड हो सकता है डिफरेंट रेट्स के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द स्वेलिंग फीचर ऑफ द मैट्रिक्स। एक फास्टर स्वेलिंग हाइड्रोजेल फास्टर इरोजन कॉज करती है, यानी जितनी जल्दी पॉलीमर मैट्रिक्स स्वेल होगा उतनी जल्दी इरोजन स्टार्ट होगी और उतनी ही जल्दी ड्रग रिलीज होगी, कंपेयर टू दी स्लो स्वेलिंग हाइड्रोजेल जिसके अंदर स्वेलिंग रेट हाइड्रोजेल का कम है, यानी लेट स्वेलिंग हो रही है, एंड दिस विल लीड टू द लेट इरोजन एंड डिलेड ड्रग रिलीज। Swellable matrix में release kinetics is generally zero order release kinetics. Okay, let's discuss the example of biodegradable polymers. Injectable plant is a common example of biodegradable polymer. Injectable plant have been developed on the basis of biodegradable polymers, and one of the implant is Leuprolide Eligard, which is a delivery system for prostate cancer and is supplied as an injectable suspension
that utilizes the Etrigel technology for delivering the hormone leuprolide acetate. So what is this Etrigel technology? Etrigel technology, in Etrigel technology we use Etrigel solution combined with drug, and we inject it into the targeted area. The endogenous water surrounding the drug actually causes the Etrigel to solidify, trapping a drug into a biodegradable implant. Here you can see that the drug is injected in a solution form. The endogenous water available here in the pink form is actually surrounding the drug and trapping the drug into a biodegradable implant. That means thereby it is solidifying the solution form of a drug, and then the drug is released in a controllable manner as implant biodegrades over time. The delivery system consists of biodegradable lactide co-glycolide copolymer dissolved in a biocompatible solvent. The polymer gradually loses its organic solubility once it is injected subcutaneously. There is another example, which is doxycycline Atridox. It is a bioabsorbable drug delivery system for the treatment of periodontal disease. Also uses Etrigel technology to deliver an antibiotic, doxycycline hyclate. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की एग्जांपल्स में मोस्ट कॉमन एग्जांपल इंजेक्टेबल इम्प्लांट है. ल्यूप्रोलाइड एलिगार्ड के नाम से एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और एक इंजेक्टेबल सस्पेंशन के तौर पे अवेलेबल है. ये इंजेक्टेबल सस्पेंशन एक्चुअली एट्रिजल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है जो हार्मोन ल्यूप्रोलाइड एसीटेट को डिलीवर करता है. अब ये एट्रिजल टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या? अब इस डायग्राम को देखिए. एट्रिजल सॉल्यूशन जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इंजेक्टेबल सस्पेंशन है, सस्पेंशन की फॉर्म के अंदर ड्रग कंबाइंड है और वो इंजेक्ट की जाती है टारगेटेड एरिया के अंदर. ठीक है, ये एट्रिजल टेक्नोलॉजी इधर सस्पेंशन यूज़ कर सकती है या फिर ये सॉल्यूशन यूज़ कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी केमिकल और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग. इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम सॉल्यूशन या सस्पेंशन वॉट एवर द केस में भी उसे इंजेक्ट करते हैं टारगेटेड साइट के ऊपर. टारगेटेड साइट या टारगेटेड एरिया में जब ये सॉल्यूशन या सस्पेंशन जाता है तो सबक्यूटेनियसली तो एंडोजीनस वाटर अवेलेबल साइट्स पे जो होता है वो इस एट्रिजल को सॉलिडिफाई करता है. सॉलिडिफिकेशन के इस नतीजे में क्या होता है कि ड्रग ट्रैप हो जाती है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट में. आपने इसे डिलीवर किया इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या सस्पेंशन, लेकिन with the chemical reaction the drug is actually solidified and it is entrapped into a implant. ये इम्प्लांट कंट्रोल्ड मैनर में ड्रग को रिलीज़ करता है या बायोडिग्रेड करता है ओवर टाइम. इस पर्टिकुलर डिलीवरी सिस्टम में जहाँ पर हम हार्मोन ल्यूप्रोलाइड एसीटेट की डिलीवरी करवा रहे हैं, ये डिलीवरी सिस्टम कंसिस्ट करता है बायोडिग्रेडेबल लेक्टाइड को ग्लाइकोलाइड कोपॉलीमर, और इस कोपॉलीमर को डिज़ोल्व किया जाता है बायोकम्पैटिबल सॉल्वेंट के अंदर. यानी ड्रग इज़ एम्बेडेड इन दिस बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर और ये सॉल्यूशन सस्पेंशन की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है. ये पॉलीमर जैसे ही इंजेक्ट होता है तो ग्रेजुअली अपनी ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी लूज़ करता है और सॉलिडिफाई होता है. हार्मोन की डिलीवरी के लिए हम सबक्यूटेनियसली डिलीवर कर रहे हैं इस पॉलीमर बेस्ड इंजेक्शन को. इसी तरह की एक और एग्जांपल है जिसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन डिलीवर करते हैं. एट्रीडॉक्स के फॉर्म के अंदर अवेलेबल है ये डिलीवरी सिस्टम. बायोअब्जॉर्बेबल डिलीवरी सिस्टम है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ेस. इसके अंदर भी हम एट्रिजल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट एंटीबायोटिक को डिलीवर करवाने के लिए. That's all from today's class. For your questions, use HULMS discussion forum.
Let's call it a day by recalling this beautiful hadith. It was narrated by Amr bin Sharid that his father said, "The Messenger of Allah, peace be upon him, said, if one who can afford it delay repayment, his honor and punishment become permissible." This is present in Sunan Nasa in book 44, and the hadith is 241. Thank you for patiently listening to this lecture. Stay safe and take a very good care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.